Hello students, myself Deepa Gupta. I am from K. Adukon, Chandigarh. I am maths teacher here and we are going to discuss test 1, which includes topic relation function and inverse trigonometry. These are the first two topics that we study in plus 2. So first test is on that only and we are going to discuss it. I think you must be having your test with you. The first question here is, which of the following are functions? So let us discuss first of all what a function is. When I say a function, I am defining from set A to set B. The definition of the function that we give is, this is A set, this is B set. कंडीशन क्या होती है हमारे पास फंक्शन के लिए? एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी रिलेटेड टू एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वाई. सेकेंड कंडीशन, 1x कैन नॉट हैव 2y. राइट, मतलब ये अगर इस तरह का रिलेशन है तो ये फंक्शन नहीं हो सकता. फॉर 2x वी कैन हैव वन इमेज, but for 1x we cannot have two values of y. Keeping this basic definition of function in mind, let us look at the given functions and analyze which one out of them will be a function. Easiest possible way for this is to draw the graphs, if you know how to draw those. First is standard y square is equal to 4x. Everybody out of you must be knowing this is a standard parabola. Standard parabola opening rightwards. Now मैंने क्या बोला, एक x के लिए दो y नहीं हो सकते. It means if I draw a vertical line, this is representing x is equal to, I've had 2 points, one this and another this, means both these are the values of y corresponding to x. And we know if for 1x we have got 2 y's, that cannot be a function. So we rule out option number 1. A option is ruled out. Now second option is y is equal to mod x. Let us plot the graph of y is equal to mod x. For this my graph will be, this is basically y is equal to x when x is greater than equal to 0 and minus of x when x is less than 0. Now let us draw the graph. For positive values this is the graph, for negative value this is the graph. So at any stage if I draw a vertical line that is going to intersect my graph only at one point, it means for 1x I am having 1y only. So this is the function y is equal to mod x. Now let us analyze another equations also. X square plus y square is equal to 1. All of you must be knowing x square plus y square is equal to 1. This represents a circle whose center is at the origin and radius 1. So it is going to be something like this. Again a vertical line intersects it at 2 points. So this is again not a function. So in this way we can say a given relation in x and y, it can be a function or it can't be a function. So this is how we analyze it, right? So for question number 1, option B is correct. So that becomes your answer. Now let us move on to question number 2. Question number 2 में आपको f of x की दो definitions given है. What are those? f of x is 1 plus greatest integer x when x is less than minus 2 and mod of x when x is greater than equal to minus 2. पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की कर लेते हैं. क्या होता है, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग इट. ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x and should be
an integer, right? So अगर मैं एग्जाम्पल लूं से 2.68 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस वैल्यू से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. सो 2.68 के बराबर करेंगे तो दैट इज नॉट एन इंटीजर. छोटा जाओगे 2.68 से छोटा इंटीजर, ये 3 ये 2, this is 2.68 से छोटा integer 2. For negative numbers, if I have say minus 2.68, now be careful, I want a number which is less than minus 2.68, and on the number line if I plot, ये minus 2 ये minus 3, somewhere here is minus 2.68, less than this is minus of 3, right? Now let's go back to our question. Question says I have to calculate value of f of minus 2.5. Now let us see. We know for calculating the composite functions f of f or f of g or g of f, we have to begin with this part. So पहला काम है f of minus 2.5 को calculate करना. f of minus 2.5. Which definition should I use? This one or this one? मुझे किस पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है? minus 2.5 पर. minus 2.5 is less than minus 2. It means I have to use this definition for calculating this value. So I will get 1 plus greatest integer of minus 2.5. जैसे हमने अभी थोड़ा पहले ही डिस्कशन की, minus 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर minus 3. So I get minus 2 as the answer for this. This part f of minus 2.5 is minus 2. Come back to this. f of minus 2. Now f of minus 2 को कैलकुलेट करने के लिए again have to see which of the definition is to be used. Equality with minus 2 is here. So for f of minus 2, I have mod of minus 2, which is 2. So the final answer for question number 2 becomes C. Right? Now let us come to next question, that is question number 3 from our test. Question number 3 says function is defined from real numbers to real numbers. पहले जरा हम इसी पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं. If I say a function is defined from real to real, or I say from A to B, this A here represents domain of f, B represents co-domain of f. It means जो मैं फंक्शन की बात कर रही हूँ उसकी डोमेन एंड को-डोमेन बोथ आर रियल नंबर्स. पहले तो इस सिंबल का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, पहले इसको समझना जरूरी है. नेक्स्ट इज फंक्शन इज गिवन टू मी. फंक्शन इज e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन 2. मुझे बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 में से एक चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को कर रहा है, क्या कर रहा है. चलो थोड़ा सा पहले हम ब्रीफिंग कर लेते हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 फंक्शन क्या होता है. 1 1 फंक्शन का मतलब फॉर एवरी x there should be only one y. 1 1 करस्पॉन्डेंस, ये सेट आपका A, ये सेट B. अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ A to B, दिस विल बी कॉल्ड 1 1 फंक्शन if every element of this is related to only one element of B. ठीक है जी. Another name for 1 1 function, injective functions. So a function will be called 1 1 or injective if I have 1 to 1 correspondence for 1x 1y.
नाउ वी कम टू ऑन टू फंक्शंस. ऑन टू फंक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना भी, और थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है कई बार इसको करने के लिए. ऑन टू फंक्शन में एज यू नो व्हाट वी से, अ फंक्शन इज ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. ठीक है जी. अभी कोडोमेन मैंने आपको बताई क्या, अगर फंक्शन ए टू बी जा रहे हो तो बी सेट इटसेल्फ बिकम्स द कोडोमेन. नाउ लेट अस सी व्हाट रेंज इज. I come back to this question. Say in this B, in place of 3 elements, I have 4. So this B, which is having y1, y2, y3, y4, will be the codomain of the function, while the elements y1, y2, y3, they will constitute the range of the function, because these are the elements which are related to x1, x2 and x3. So what I said, for a function to be onto, range should be equal to codomain. It means इस function में अगर मुझे function को 1-1 onto प्रूव करना है, एक तो मुझे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दिखानी है, दूसरा मुझे बताना है कि फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर है. देखो मैं इसको लिख दूं e पावर x माइनस 1/e पावर x अपॉन 2. एलसीएम ले लेते हैं, e पावर 2x माइनस 1 2ex. ठीक है जी. मेरे पास कोडोमेन, मेरा फंक्शन डिफाइंड था रियल टू रियल, सो कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. फॉर कोडोमेन टू बी इक्वल टू रेंज, व्हाट आई वांट, whenever I put a real value here, I must get a real value. This is what I need. अगर मेरे पास कोडोमेन में रियल नंबर पड़े हैं, मेरे पास यहाँ x को रियल नंबर देने से f of x भी रियल बन जाएगा, तो मेरा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा. Now, if I give any real value to x, exponential functions are always real for real values. ये रियल है -1/2 times the real value. So for all real x, I'm going to get real by. It means codomain is equal to the range, right? So function is onto. Onto का another name is surjective map या फिर surjective function, right? So we proved the function to be onto. There are, you must have read different methods कि यहाँ पर y is equal to function of x है, x as a function of y represent करो और फिर उसमें देखो कि कोडोमेन रेंज के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है. बट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. just by looking at it, the expression for every real x I am getting a real y. So my function becomes onto. Now let us see for 1-1 functions what we have to do. 1-1 functions के लिए आपने 2 तरीके जरूर पढ़े होंगे. कैसे प्रूफ करते हैं? हम कहते हैं we suppose let f of x1 is equal to f of x2, where x1 x2 belongs to domain of the function. And by this, if I can reach at x1 is equal to x2, then we say function is 1-1. This is one method of finding out the function to be 1-1. Second method जो हम अप्लाई करते हैं, that is we say if f of x1 is not equal to f of x2, then it must imply x1 not equal to x2. ये दोनों मेथड आप लोगों ने पढ़े भी होंगे और यूज भी किए होंगे. We are going to discuss another method, the third method, which is again important when we go for multiple choice questions. क्या करते हैं हम? For proving a function to be 1-1, हम ये प्रूफ करेंगे कि मेरा फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या तो टोटली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. देखो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, क्या मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब अगर x1 x2 से बड़ा है, f of x1 भी f of x2 से बड़ा हो, then we say f of x is increasing. मतलब
जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ y बढ़ता जा रहा है. सो ऐसे फंक्शन के लिए ग्राफ ऐसा होगा, ये x इससे करस्पॉन्डिंग ये y, x को बढ़ाया y बढ़ गया, x को बढ़ाया y बढ़ गया. एंड इफ फंक्शन इज लाइक दिस, विल इट बी 1 1? सी, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए मेरे पास एक ही y की वैल्यू आ रही है. ऐसा तो नहीं है कि x के लिए 2 y आ रहे हैं, मतलब फॉर 1x आई एम नॉट गेटिंग 2y और फॉर 2x आई एम गेटिंग 1y. ऐसा नहीं हो रहा. तो मेरे पास यहाँ पर एक x के लिए एक y आ रहा है. सो इफ आई कैन प्रूव माई फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, I can say function is 1 1. Similarly, if I say function is strictly decreasing, decreasing का मतलब अगर x1 x2 से बड़ा है तो f of x1 f of x2 से छोटा होना चाहिए. मतलब जैसे जैसे x को बढ़ाओ तो y कम हो जाए. That is the decreasing function. For decreasing functions, my graph should be like this. ओके, ये x ये y, x को बढ़ाया y नीचे आ गया. सो दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन. एंड फ्रॉम द ग्राफ इट इज अगेन क्लियर कि मेरे पास फंक्शन 1 1 है, एक x के करस्पॉन्डिंग एक ही y मेरे पास आ रहा है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट अस यूज दिस मेथड सो दैट यू विल बी हैविंग क्लैरिटी हाउ टू यूज दिस. अब आप लोगों को पता है, इफ a function is increasing, if a function is increasing, its derivative must be greater than 0. If a function is decreasing, then its derivative must be less than 0 for all values of x. So let us calculate derivative of the function. फंक्शन को मैंने लिखा था e पावर 2x minus 1 to e power 2x. Now let us differentiate this function using u by v method. F dash x v square v into derivative of u 2 into e power 2x minus e power 2x minus 1 into 2 into e power x. इसका डेरिवेटिव भी यही है. Simplify it. 4 e power 3x minus 2 into e की power 3x plus 2 into e power x 4 e power 2x. It makes it 2 e power 3x 2 e power x 4 e power 2x. As we know, exponential functions never give us the negative value, they always give us the positive value. So all terms are positive, it means the derivative is greater than 0, it means function is throughout increasing, it means function is 1 1. I think this method is clear to you. So फॉर डूइंग योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या कई जगह ऐसे होता है कि हमारे को क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे लिए प्रूव करना मुश्किल है कि वो 1 1 है या नहीं है. जो हमारे पास मेथड्स हमें मालूम है उससे कई बार बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रूव. सो दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल मेथड. व्हाट वी डू, वी टेक द डेरिवेटिव. इफ इट इज थ्रू आउट ग्रेटर देन 0 और थ्रू आउट लेस देन 0, वी से फंक्शन इज ईदर थ्रू आउट इंक्रीजिंग और थ्रू आउट डिक्रीजिंग. इन दैट केस माई फंक्शन बिकम्स 1 1. So this function now is both 1 1 as well as 1 2, injective as well as surjective. Such functions which are both 1 1 and 1 2 are also called bijective functions. Bijective functions. So if a function is both 1 1 as well as 1 2, such functions we say bijective functions. जब हम इनवर्स ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं तब इस पर आते हैं. सो अभी पहले सिर्फ कंडीशन याद रखेंगे. बाइजेक्टिव फंक्शन क्या, जो 1 1 भी है और 1 2 भी है.
ठीक है जी. So third question का answer is the function is 1 1 on 2. It means C is the answer for the question. Now let us move on to question number 4. Question number 4 says there are 4 graphs given to you and you have to tell which one out of it is the graph of a function. जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन की, फंक्शन का ग्राफ अगर गिवन हो और बताना हो, आई मीन अ ग्राफ इज गिवन, आपको बताना है कि वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो हमें क्या करना होता है, हमें एक वर्टिकल लाइन लेनी होती है. अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन है. सो ए इज द आंसर फॉर दिस. लेट अस सी ऑप्शन. सी ऑप्शन क्या है मेरे पास, ये है ग्राफ. मैं एक वर्टिकल लाइन ले लूं, यहाँ पर ये y को दो जगह कट कर रही है. सो एक ही x के लिए 2y हो गए, एक x के लिए 2y हो गए, तो वो फंक्शन नहीं रहा. सो क्वाइट क्लियर, A इज द आंसर फॉर दिस. A ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है, वी हैव टू टेल द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to log of x upon fractional part x. यहाँ पर क्वेश्चन की डिस्कशन से पहले थोड़ी जनरल डिस्कशन हम कर लेते हैं. दैट इज डोमेन क्या होती है. आप सबको मालूम, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे जैसे x को चेंज करते हैं करस्पॉन्डिंग y चेंज हो जाता है. सो ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच डज नॉट मेक माई फंक्शन अनडिफाइंड आर कॉल्ड डोमेन, and all values of dependent variable which this dependent variable will take for the values of independent variable constitute the range. Right? तो डोमेन कैलकुलेट करनी है मुझे इस फंक्शन की. नाउ लेट अस एनालाइज द फंक्शन. फंक्शन में क्या है, लॉग है, फ्रैक्शनल पार्ट x है. सो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसकी डोमेन तक जाने के लिए हमें एक तो लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, दूसरा हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज नथिंग बट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x. लेट अस कैलकुलेट फॉर से 1.52. 1.52 minus greatest integer of 1.52. 1.52 minus 1, 0.52. Let us consider some, say, integer 3. 3 minus greatest integer of x of 3, 0. So, let us take some negative number. If I take, say, negative number minus 1.52, what will happen? Minus 1.52 minus greatest integer of minus 1.52, which gives me answer as minus 1.52. This will be minus, इसका करना है greatest integer. माइनस 1.52 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 और माइनस प्लस का 2. सो 2 minus 1.52 अगेन अ फ्रैक्शनल वैल्यू. सो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ 0. As the name suggests, fractional part function means the end result is always a fraction. तो हम क्या कहते हैं, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट x है, इसकी रेंज इज ऑल दी फ्रैक्शंस रेंजिंग बिटवीन 0 till 1. 0 when x is the integer, between 0 and 1 when it is any other value. Obviously it can never become 1. This is always fractional value. Now
आफ्टर दिस few properties of log. हमें मालूम है log x is defined if x is positive greater than equal to 0. नेगेटिव नंबर्स का log डिफाइंड नहीं होता. पहली चीज, आई एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स, ऑल दीज मस्ट बी नोन टू यू. log x 0 से बड़ा होगा तभी हम log कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट, log x can give us negative values. When it gives the negative values, when it gives the positive value, that is another point to be seen. Whenever x is lying between 0 and 1, log x is negative. And when x becomes greater than 1, log x is positive. At x is equal to 1, log x is 0. So log 1 0 होता है, right? log 0 undefined होता है. So ये कुछ बेसिक पॉइंट्स. log x नेगेटिव कब होगा? जब x 0 और 1 के बीच में जाएगा. log x पॉजिटिव कब होगा? जब x 1 से बड़ा होगा. log x 0 कब होगा? जब x 1 हो जाएगा और log 0 रहेगा undefined. So keeping these things in mind, let us come back to the question and see. मैं क्या कर रही हूँ? I am calculating log of this quantity. अगर मैं log इस क्वांटिटी का निकाल रही हूँ, इसका मतलब ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए? log of x upon fractional part x. This should be positive. This should be greater than 0. और अभी हमने देखा किसी भी क्वांटिटी का log 0 से बड़ा कब होता है? जब वो क्वांटिटी 1 से बड़ी होती है, राइट? सो एक कंडीशन, x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बड़ा होना चाहिए 1 से. दूसरा, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x का log कैलकुलेट हो रहा है तो ये होना चाहिए पॉजिटिव. x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा, 1 से बड़ा. अभी हमने देखा ये जो वैल्यू है ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यूज दे रही है, ठीक है जी. सो एक बात तो यहाँ से बड़ी क्लियर है कि जो मेरा x है वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता. ये हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया तो log नेगेटिव क्वांटिटी का आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट? दूसरा, ये पार्ट 1 से बड़ा होना चाहिए. इसको 1 से बड़ा करने के लिए x कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा. सो पॉजिटिव 1 से बड़ा, पॉजिटिव एज वेल एज 1 से बड़ा मीन्स 1 से इंफिनिटी. अनदर प्रॉब्लम इज, हमने देखा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 बनता है किन वैल्यूज के लिए? इंटीजर वैल्यूज के लिए. सो if I give integral values to x, this is going to be 0. Something upon 0 undefined, and I don't want to make it to be undefined. It means I cannot give integer values to x. तो मेरे पास आंसर क्या हो गया? x 1 से बड़ा but integer नहीं हो सकता. So 1 to infinity minus I. This I is representing the set of integers. So according to this, C option becomes my answer. 1 till infinity minus the integral values, right? So डोमेन देखने के लिए हमारे पास जब भी log आ जाएगा तो आपको क्या चीज याद रखनी है? log जिस भी क्वांटिटी का ले रहे हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए. किसी भी क्वांटिटी का log नेगेटिव कब होता है? जब वो क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में होती है. पॉजिटिव जब वो क्वांटिटी 1 से एक्सीड कर जाती है. इसी तरह से डोमेन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ और रूल्स हैं. सपोज मेरे पास फंक्शन के अंदर अंडर रूट आ जाता है. से आई हैव f of x as अंडर रूट g of x.
whenever I have under root, the quantity inside this must be 0 or greater than 0. अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, मालूम है आप लोगों को, क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़े थे +1 के अंदर. सो ये रूल हम अप्लाई करेंगे. एफ ऑफ एक्स अगर अंडर रूट जी ऑफ एक्स है, मुझे डोमेन निकालनी है, तो कंडीशन क्या लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव. इसी के साथ एक और रूल देख लेते हैं. सपोज मेरे पास हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स. फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, what should happen? This should never become 0, because if this becomes 0, something upon 0 undefined हो जाता है. So condition h of x should not be equal to 0. This gives me conditions on x, so gives me the domain. So for finding out domain 3-4 रूल्स हमारे पास वर्क करते हैं. log आ जाता है तो उसके साथ की क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए. अंडर रूट आ जाता है तो उसके अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए. फ्रैक्शंस आ जाते हैं, फ्रैक्शन आई शुड से कि जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स की फॉर्म है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. इसी तरह से आपके पास आ जाता है साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा. आप लोगों को पता है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्शन है एक्स के ऊपर. एक्स शुड ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1. So this again gives me condition on x. So ये 3-4 बेसिक रूल्स हैं हमारे पास जब हमें डोमेन निकालनी होती है, राइट? आगे हम इस चीज को यूज करेंगे क्वेश्चन में. सो आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे. लॉग आ जाए तो उसके साथ की क्वांटिटी पॉजिटिव, अंडर रूट आ जाए तो उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म तो डिनोमिनेटर 0 नहीं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो एक्स -1 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्या कह रहा है. आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज 1 minus x upon 1 plus x. We have to find domain of the function whose graph is the reflection of f of x with respect to line y is equal to x. सबसे पहले इस बात को समझना है हमने कि अगर मैं y is equal to f of x इस ग्राफ की रिफ्लेक्शन इमेज लूं in the line y is equal to x, what actually am I doing? किसी भी फंक्शन का रिफ्लेक्शन इमेज अगर आप y is equal to x लाइन में लेते हो, टेकिंग दिस टू बी अ प्लेन मिरर, किसी भी ग्राफ की इमेज आप इसमें ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उस फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हो. डू रिमेम्बर दिस थिंग. Whenever we are taking image of any graph in the line y is equal to x, what we are doing, we are calculating the inverse of the function. It means अब क्वेश्चन क्या हो गया, आपको बताना क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है और उस इनवर्स की क्या डोमेन है वो निकालनी है हमें. तो पहला स्टेप हो गया इनवर्स निकालना. जो भी कुछ वो फंक्शन बन जाएगा फिर हम देखेंगे कौन सी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है टू गेट द डोमेन. सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द इनवर्स व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी यूज. पहली बात तो जब हम इनवर्स ले रहे हैं किसी भी फंक्शन का तो हम करते क्या है, अगर फंक्शन है a to b, I am calculating it inverse. It means I am defining a function from b to a. We are basically interchanging x into y and y into x. डोमेन कोडोमेन या डोमेन रेंज और रेंज कोडोमेन हो जाती है जब भी हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स ले रहे हैं. अब यहाँ है y as a function of x. Whenever you want to calculate inverse of a function, what we will do, we will express x as a function of y.
मतलब x should be here and here I should have function of y. So मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, x को सेपरेट आउट करना है और x को एज अ एक्सप्रेशन ऑफ y रिप्रेजेंट करना है. लुक एट इट, क्या कर रहे हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई. y into 1 plus x is 1 minus y. y plus yx 1 minus x. yx plus x 1 minus y. x 1 plus y is equal to 1 minus y. x is 1 minus y over 1 plus y. यहाँ पर क्या था? y as a function of x. यहाँ पर क्या है? x as a function of y. पहला स्टेप इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए x as a function of y रिप्रेजेंट करो. सेकेंड स्टेप, replace this x with f inverse x and the y with x. So this is your inverse of this function and if you look at it both are same. So it is possible कि आपके पास एक फंक्शन और उसका इनवर्स सेम हो जाए. So ये नहीं देखना कि यही फंक्शन था, ये इनवर्स कैसे आ गया. It is quite possible कि फंक्शन और उसका इनवर्स सेम हो. राइट? सो हमने क्या कर दिया? गिवन फंक्शन की इमेज निकाली है इन y is equal to x. इमेज निकालने का मतलब क्या था? इनवर्स निकालना. इनवर्स निकाल दिया हमने. अब क्या करना है मुझे? इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है. आपको बताया मैंने अभी, डोमेन अगर मेरे पास g of x अपॉन h of x की फॉर्म हो, डोमेन की कंडीशन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Here denominator is 1 plus x. It should not be equal to 0 means x should not be equal to minus 1. इसके अलावा आप x को जो मर्जी वैल्यू दे दो, कहीं पर भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बन रहा. इट मीन्स मेरे पास इस फंक्शन की जो डोमेन हुई दैट इज all real numbers except minus 1. This is how we represent it. Real number का सेट, उसमें से निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको? -1 को, क्योंकि सिर्फ -1 पर ही मेरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा था. राइट? सो डोमेन का सेकेंड रूल, जो एक रूल आपको समझाया था, h of x अपॉन f of x है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना. अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. इट मींस x वो वैल्यू नहीं ले रहा जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन डी बिकम्स आवर आंसर, r minus 1. ठीक है जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फंक्शन इज डिफाइंड, गिवन है फंक्शन एंड वी हैव टू अगेन कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. ठीक है. फंक्शन डिफाइंड है 1 इंफिनिटी से लेकर के 1 टू इंफिनिटी. मतलब फंक्शन में x ये वैल्यूज ले सकता है, y ये वैल्यूज ले सकता है. फंक्शन है क्या मेरे पास? फंक्शन इज 2 raised to the power x into x minus 1. मुझे कैलकुलेट करना है इसका इनवर्स. अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इनवर्स कैलकुलेट किया. इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने? y एज अ फंक्शन ऑफ x है, मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट करना है. सो इस स्टेप को करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीके हमें अप्लाई करने पड़ेंगे. पिछले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम चल गया था. अभी यहाँ देखो क्या है, x इज इन द पावर. जब तक आप इसको पावर से नीचे नहीं लाएंगे आगे हम कुछ कर नहीं सकते. इफ अ थिंग इज इन पावर एंड आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन, क्या करना पड़ेगा मुझे? टेक लॉग ऑन